جی مجھے امید ہے آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جی نظر آ رہی الحمدللہ ٹھیک ہے. To pronounce all the Arabic alphabets with permanent لازمہ and temporary عارضہ qualities is called تجوید. اس کا مطلب ہے کہ عربی، اس کا مطلب ہے تمام عربی حروف کو جیسے الف سے لے کے یا تک، ٹھیک ہے نا، تب ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے دو کوالٹیز ہیں جو ہمیں کور کرنی ہے لیٹرز کی، صفات عارضہ بھی اور صفات لازمہ بھی، ٹھیک ہے نا. صفات عارضہ اور صفات لازمہ دونوں کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی تجوید کی ڈیفینیشن. اب آئیے اب نیکسٹ میں لکھیے کہ نیکسٹ میں اب لکھیں آپ while reciting the holy Quran، while reciting the holy Quran، while reciting the holy Quran one a person may make یا may commit کہہ لیں آپ two types of mistakes. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسٹیک جو ہے نا ان دا لینگویج آف تجوید، بلکہ یہ لکھیں سوری، ان دا لینگویج آف تجوید مسٹیک از کالڈ، ہم نا مسٹیک کے لیے جسے ہم غلطی کہتے ہیں تو تجوید کی زبان میں اس کا ایک نام ہے. غلطی کو خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے نا تو ہم اس کو یہ نہیں بولتے کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے یا آپ غلطی کر رہے ہو، نہیں، اس کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں لحن. ٹھیک ہے، لام ہا اور نون، لام ہا نون، لحن. ٹھیک ہے نا، ان دا لینگویج آف تجوید مسٹیک از کالڈ لحن. مسٹیک کو لحن کہتے ہیں. یعنی کہ اب اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جان آپ غلطی کر رہے ہیں یا بہن آپ غلطی کر رہی ہیں، نہیں، آپ سے لحن ہو رہا ہے. صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان ہے نا یہ، تو قرآن مجید پڑھنے کے دوران آپ لحن آپ سے ہو رہا ہے، آپ کو لحن پر توجہ دینے چاہیے، آپ لحن کو کور کریے. ٹھیک ہے نا، تو دو قسم کے لحن ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، ہمیں وہ دونوں سمجھنے ہیں. نمبر ون از کالڈ لحن جلی. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، نمبر ون از کالڈ لحن، سوری میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ لیں. لحن جلی، جیم لام اور یا. میں اس کو تھوڑا سا بولڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ صاف نظر آئے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں یہ آ گیا لحن جلی، اور اس کو اگر ہم بولڈ کر دیں، جی یہ دیکھیں تو یہ بن گیا لحن جلی. ٹھیک ہے، لحن جلی اس کا مطلب ہوتا ہے اوپن مسٹیکس. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے لحن جلی. جلی کہتے ہیں اوپن، ظاہری غلطیاں، بہت ظاہری غلطیاں جو ہوتی ہیں، جو اوپن مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، دس از دا میننگ آف لحن جلی. اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلطیاں کرنا قرآن مجید میں حرام ہے. آپ کو پتہ ہے حرام کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مطلب پتہ ہے حرام کا، کہ حرام کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیے گا ذرا، حرام کسے کہتے ہیں؟
हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर है ना जी, प्लीज बताइएगा। जी अहमद भाई बता दें, आप बता दें जी। हुर्मत से कोई ताल्लुक? भाई हराम की कोई डेफिनेशन तो होगी ना। हुर्मत, जी वैसे तो जी साथ साहब, वैसे तो हम हराम को हलाल और हराम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, मगर हराम का हुर्मत से भी कोई ताल्लुक है? जैसे हम कहते हैं मस्जिदुल हराम, नहीं 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 तो नहीं नहीं हुर्मत नहीं की नहीं नहीं नहीं, रिलेशन है। हुर्मत अलग चीज होती है। देखिए मस्जिदुल हराम अलग चीज है, और वो हुर्मत जो है ना, देखिए हुर्मत वाली जगह मतलब इज्जत वाली, वो हुर्मत इज्जत के मायनों में है। ये हराम का मतलब है जिसको हम तर्जुमा करते हैं फॉरबिडन, समथिंग विच इज नॉट अलाउड एट ऑल, है ना। इसका मतलब है हराम की कोई डेफिनेशन होगी लाजमी, जो हमें पता होनी चाहिए, है ना भाई। तो हराम की क्या डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, हराम कहते हैं किस चीज को है कि जिस काम को ना करने पर सवाब मिले, जिस काम वो काम कि जिसको इंसान अगर नहीं करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर उसने किया तो उसको सजा मिलेगी आखिरत, उसे हराम कहते हैं। ठीक है ना। हुआ मा युसाबु, हुआ मा युआकिबु फिअलुहु, व हुआ मा युसाबु तर्कुहु, व युआकिबु फिअलुहु। यानी वो काम के जिसको ना करने पर अजर मिले और जिसको करने पर आखिरत में सजा मिलेगी, उसे हराम कहते हैं। तो देखिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये हमारा दीन है, तो इसमें मतलब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई भी काम अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि देखो इसके करीब भी मत जाना, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अगर तुमने ऐसा किया तो ये सजा मिलेगी, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो हराम कहलाती हैं हमारे यहाँ। तो अब ये जो गलतियां हैं जो मैंने आपको बताई है कि जो ओपन मिस्टेक्स हैं कुरान मजीद की, इसको अगर हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसके लिए हम ये इल्म हासिल कर रहे हैं, तजवीद पढ़ रहे हैं, तो हमें सवाब मिलेगा। और अगर हमने इसको किया तो हमें आखिरत में सजा मिलेगी। सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि मायने आप खुद देखिएगा, अभी मायने ही बदल जाएंगे। तो हम जो पढ़ के जाएंगे अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला कहेंगे तुमने दुनिया के सारे इल्म हासिल कर लिए, तुम पीएचडी बन गए, तुम पता नहीं क्या क्या बन चुके, लेकिन जिस किताब पर तुम्हारा ईमान था तुम्हें वो किताब ही नहीं पढ़ना आती थी। जिसकी तिलावत पर मैंने इतना अजर सवाब रखा था, तुमने सिर्फ वो किताब ही पढ़ना नहीं सीखी, तुमने सारी किताबें पढ़ डाली जिन पे तुम्हारा ईमान ही नहीं था। और कुरान मजीद जिस पर तुम्हारा ईमान था वो तुम्हें पढ़ना भी नहीं आई। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए इस कैफियत से। ठीक है ना। और अब आप अंदाजा करिए अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा हमारे ऊपर इनाम है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने उन बंदों में से खालिज कर लिया कि जो इस इल्म को सीख सकें, एटलीस्ट कम से कम हराम गलतियों से बच सकें। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, हराम, ये गलतियां जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हराम है। ठीक है जी। और मतलब ये मैंने आपको इसका हुक्म बता दिया। ठीक है, आइए इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपके सामने लिखूंगा अभी, आप लोग देखिएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे पढ़ के बताना है। एक है जल्ला, ठीक है। अच्छा एक है, अब मुझे आप लोग पढ़ के बताइएगा कि इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है जी। अब देखें ये चार लफ्ज हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने चार लफ्ज लिखे हैं। हमारे जो उर्दू दान लोग हैं, जो बेचारे तजवीद नहीं जानते या इस इल्म को जिनको पढ़ाया ही नहीं गया, वो क्या बोलेंगे? उनके लिए तो एक ही लफ्ज है, जल्ला। ठीक है। अब देखें, एक है जल्ला, जा से है। दूसरा वाला है रल्ला, राल से है। तीसरा वाला है वल्ला, वो से है। और चौथा वाला वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाता है, उसको हम कहते हैं वल्ला या फिर वल्ला। दौत कह लें या वौत कह लें, दोनों सही है। तो वल्ला, वल्ला, जल्ला, जल्ला। तो
اگر آپ نے اس کو صرف زلہ پروناؤنس کر دیا، پہلے والا زلہ ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ پھسل گیا، ہی سلپڈ، زلہ وہ پھسل گیا، ٹھیک ہے. دوسرے والے کا مطلب ہے زلہ وہ کمزور ہو گیا یا ذلیل ہو گیا. سوچیں، ٹھیک ہے، وہ کمزور ہو گیا یا ذلیل ہو گیا. چوتھا والا جو ہے یہ ہے ظل، وا سے جو ہے تیسرا والا، سوری، اس کا مطلب ہے اس نے سایہ کیا، اس نے کسی کو سایہ دیا، اس نے سایہ دیا، ٹھیک ہے نا، ہی شیڈڈ سمبڈی. اور آخری اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہو گیا، یعنی کہ وہ غلط راستے پہ نکل گیا. ہی وینٹ ایسٹرے، وہ چلا گیا غلط راستے پر. آپ سوچیں ان چاروں کے مطلب الگ الگ ہیں بالکل. اور اگر آپ نے اس کو خدا نہ خواستہ زلہ کو ذلہ کر دیا یا ذلہ کو ذلہ کر دیا تو پوری آیت کا مطلب بدل جائے گا. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور مثال کے طور پہ نون، صاد اور را، ٹھیک ہے، نصر، ٹھیک ہے نا، نون کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر جزم ہے. یہ عربی میں جزم اس طرح بنتا ہے، صاد، ٹھیک ہے نا، تو یہ جزم ہے. اور را نصر، ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، وہ ہے نون، سین اور را، نصر، ٹھیک ہے جی. نون صاد زبر، یہ تو یہ ہے، ایک ہے نصر اور ایک ہے نصر. ایک کا مدد جو سیدھے ہاتھ والا ہے نا، جو سیدھے ہاتھ والا ہے نص صاد والا، اس کا مطلب تو مدد ہے. اس نصر کا مطلب ہوتا ہے گدھ، جانور کا نام ہے وہ، نہیں گدھ جو کہ مردار کھا رہا ہوتا ہے، گدھ جی. تو یہ نصر کا مطلب ہے گدھ، جو جانور کا نام ہے. سوچیں آپ، تو ایک کا مطلب مدد ہے اور ایک کا مطلب ہے جانور کا نام. اگر آپ نے صاد اور سین میں فرق نہیں کیا تو معنی بدل جائیں گے. یہ ہیں اوپن مسٹیکس، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایک غلطی تو یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ورڈز بدل جاتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. سوری ایک سیکنڈ. جی ڈسٹورشن ہو رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی، بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی، آپ لوگ اب آڈیبل نہ ہو، تھوڑا سا میرے خیال میں ڈسکشن ہوا تھا. ڈسٹورشن ہو گئی تھی، آپ ہاں کی ہاں آواز نہیں آئی جی تھی جی یار. جی دیکھیں اب صحیح ہے، اب صحیح ہے ماشاء اللہ. ایم آئی آڈیبل نہ ہو؟ الحمد للہ الحمد للہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں، ایک ہے نصرن اور ایک ہے نصرن، ٹھیک ہے نا. تو ایک نصرن ہے اور ایک ہے نصرن. اگر آپ نے اس کے بیچ میں فرق نہیں کیا تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ اوپن مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر الفاظ کے معنی بدل جا رہے ہیں بالکل، صحیح ہے نا. آپ نے ورڈز کو بدل دیا، آپ نے ورڈز کو صحیح پروناؤنس نہیں کیا تو معنی بالکل بدل گئے. ایک تو یہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ اسی لیے حرام ہے یہ غلطیاں، ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ایک اور بات ہے، دوسری غلطی ایک اور ہوتی ہے لوگوں سے، وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، کہ جب عربک واولز میں مسئلہ آ جاتا ہے. عربک واولز ہے نا، آپ کو پتا ہے واولز کیا ہوتے ہیں؟ اور واولز ہماری مطلب انگلش کے واولز تو آپ سب نے پڑھے ہوں گے، ہے نا. تو انگلش کے جو واولز ہیں، ایک سیکنڈ جی، دیکھیں انگلش کے جو واولز ہیں وہ ہم سب نے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. عربک کے بھی واولز ہوتے ہیں. انگلش کے واولز ہیں، دیکھیں اے ای آئی او یو، ہے نا، ہم سب کو پتا ہے. اور واولز کس لیے ہوتے ہیں؟ the purpose of the vowels is to determine the sound. ساؤنڈ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ آ ہے یا ای ہے یا او ہے یا او ہے، اس طرح کے ساؤنڈ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے واولز ہوتے ہیں. تو عربک کے واولز میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی کہ عربک کے واولز کون کون سے ہیں. شارٹ واولز اور لانگ واولز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا ہے. تو اس کے اندر بھی مسٹیک ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے ایک واول ہے زبر، آپ نے اس کو پیش پڑھ دیا تو مطلب بدل جاتے ہیں. جہاں جہاں معنی بدل جاتے ہیں ان غلطیوں کو ہم کہتے ہیں لحن جلی، ٹھیک ہے. اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں حرام، اور ان کا حکم حرام ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے. حرام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو نہ کرنے پر
अजर मिलता है, और अगर खुदा ना खास्ता इसको हमने कमिट किया तो हमें उस पर सजा मिलती है आखिरत में। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। आइए मिस्टेक नंबर 2, वो है लहने खफी। ठीक है, लहने जी जी प्लीज, जी प्लीज सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन प्लीज। नसरुन और नसरुन के जी मतलब बताएंगे आप, जी माने जी बताएंगे जी जी क्या मैंने है? बताया था। देखिए नसरुन का मतलब होता है मदद, टू हेल्प। ठीक है, और बताया था ना मैंने, ये ठीक है, नसरुन कहते हैं गिद्ध को, गिद्ध जानवर जो है, अच्छा, वो जो मुर्दार खाता है। जी, जी है ना। वल्चर, जी 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 जी। तो एक एक का मतलब है मदद, थैंक यू और जो वेलकम, एक का मतलब है जी। मदद, और एक का मतलब है वो जानवर। तो अस्तगफिरुल्लाह, तो अगर हमने सौत को सही स्वॉट वाला है वो, उसका मतलब, जी जी, सौत जो है उसका मतलब स्वॉट मदद का है। मतलब है मदद, जी, और सीन अगर मदद, आ ठीक है, जाएगी, और अगर नसरुन पढ़ दिया आपने, तो नसरुन का जी मतलब है गिद्ध। ठीक है ना, ठीक, जज़ाकल्लाह, जो हम पढ़ते हैं वही आपको। जैसे सूरह नस्र में हम पढ़ते हैं ना, इदा जा नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि, जब आई अल्लाह ताला की मदद। और अगर आपने वहाँ पे सौद की जगह पे सीन पढ़ दिया, इदा जा नस्रुल्लाहि, जब आया अल्लाह की तरफ से एक गिद्ध, जब आया अल्लाह की तरफ से एक जानवर, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचिए कितनी मतलब मायने बदल जाएंगे। और उल्टा फिर कुरान मजीद पढ़ने पे जो है ना, वो हमें सवाब की जगह पे फिर जाहिर बात है वो इसीलिए सजा मिलेगी कि भाई इतना टाइम तो तुम्हें निकालना चाहिए था कि तुम थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है ना, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी उम्मत की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करे कि हम ये इल्म सीख के दूसरों को सिखाएं आगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, हम सब अपनी ये नियत रखें, अल्लाह ताला मुझे ये इल्म आएगा, मैं कम से कम एक इंसान को दुनिया में सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगी। तो उससे होगा ये जाहिर बात है कि एक तो मेरा सदका जारिया बन जाएगा, नंबर एक। दूसरा कि कितने बड़ी यानी कि आप समझें, आप महरूमी से और गुनाह की बात है कि इंसान जो है ना वो बच जाएगा बराबर। ठीक है। अच्छा, अब है मिस्टेक नंबर 2, जो लोग कुरान मजीद पढ़ने में करते हैं, वो है लहने खफी। ठीक है ना, लहने खफी, लहने खफी कहलाती है वो, खौ, फा और या, लहने खफी। लहने खफी का मतलब होता है हिडन मिस्टेक्स। ठीक है जी, लहने खफी का मतलब होता है हिडन मिस्टेक्स, छुपी हुई गलतियां। ठीक है, और इसका भी हुक्म पता होना चाहिए कि इसका क्या हुक्म है ना भाई, इसका हुक्म पता होना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड जी। तो जैसे ये लहने खफी है, तो हमें इसका हुक्म पता होना चाहिए। जैसे कि लहने जली हराम है, वैसे लहने खफी को कहते हैं हम मकरूह। एक सेकेंड जी, जैसे लहने खफी का हुक्म है हराम, वैसे ही लहने खफी का जो हुक्म है वो है, उसे हम कहते हैं मकरूह, मकरूह तहरीमी। ठीक है, मकरूह तहरीमी। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए कि मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं। पहले ये तो ये बताइए कि मकरूह किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हराम उसको कहते हैं कि जिसको हमें छोड़ने पर, जिसको ना करने पर हमें अजर व सवाब मिले, और खुदा ना खास्ता अगर हम उसको कर लें तो उस पर हमें आखिरत में सजा मिलेगी। तो ये बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरु, थोड़ा सा जरा वो एरर हुआ है, मैं आपसे माजरत खाऊं, इंशाल्लाह वो ये कि कल से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना जी। आप लोगों को नजर आ रही होगी लहने खफी। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी, प्लीज कोई बता दे या लिख दे, चैट में लिख दे, एम आई ऑडिबल। हुसैन, हाँ जी। हुसैन, एम आई ऑडिबल। जी उस्मान, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, you're audible. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही है। बहुत माजरत, इंशाल्लाह देखें कल से फिर ये और Kind of, your voice struck sometimes. इज इट ओके नाउ, इज इट बेटर नाउ?
No, it's lagging. It's breaking up. Okay, I think now it should be okay. Bismillahirrahmanirrahim. तो इंशाल्लाह वैसे तो इट विल बी डन बाय टुमारो इंशाल्लाह। वो कल आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें कोई वो डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मैं असल में आज खुद ऑफिस में एक जगह था, तो इसीलिए अब आई हैड टू कम हियर अर्जेंटली, तो दिस इज व्हाई। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो इट विल बी स्मूथ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी, नाउ इज इट बेटर? एम आई ऑडिबल नाउ? इज इट ओके? शैल वी प्रोसीड? जी ओके, ठीक है, डन। जी बिल्कुल। नाउ ठीक है, देखिए मकरूह तहरीमी, ठीक है, पहले वर्ड मकरू को मतलब समझिए, और फिर तहरीमी तो अभी हमने पता कर लिया है कि समवन तहरीम इज रिलेटेड समवन नियर टू हराम। व्हाट डू वी डिफाइन, हाउ डू वी डिफाइन मकरू? जी, मकरू किसे कहते हैं? किसी के जहन में कुछ है? जल्दी से बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ताकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मकरू आप लोग लिख लीजिए। मकरू जो टर्म है हमारे दीन की, इसका वैसे नॉर्मली मतलब है नापसंदीदा, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है नापसंदीदा, और हुक्म यह है कि वो अमल कि जिसको छोड़ने पर सवाब मिले लेकिन करने पर गुनाह ना मिले, मतलब सजा ना मिले। जिसको छोड़ने पर उस पर अजर मिलेगा, और अगर किसी ने वो किया अमल तो उसको कम सजा नहीं मिलेगी बहरहाल। ठीक है, ठीक है, डन है, समझ में आया सबके? जी, वो अमल कि जिसको हम करें तो हम ना करें, जिसको हम ना करें तो हमें अजर सवाब मिलेगा, और अगर हमने किया आखिरत में सजा नहीं देंगे अल्लाह ताला। सही है, लेकिन छोड़ना बाइस से अजर सवाब है, उसे हम मकरू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मकरूह तहरीमी, अब जब इसको पूरा मिलाएंगे, मकरूह तहरीमी इज द टर्म नियरेस्ट टू हराम। ठीक है ना, तो ये जो लहन खफी है इसका करना हमें नियर टू हराम लेके जाता है, बट इट इज नॉट हराम, रिमेंबर। ठीक है ना, तो आप समझे आप कि हराम से जो पहले का स्टेज होता है वो मकरूह तहरीमी है, समझ लें आप एक तरह से। ठीक है ना, इट इज नियर टू हराम बट इट इज नॉट हराम। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? वी नीड टू कवर दीज टू मिस्टेक्स, हमें इन दोनों गलतियों को कवर करना है, लहने जली को भी और लहने खफी को भी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक तो कुरान मजीद की डेफिनेशन पक्की याद कर लें, व्हाट इज कुरान जो हमने कहा, और हमने इसके अंदर नकल मुतवातिर की जो बात की है, आप इसको पक्का कर लें कि नकल मुतवातिर थोड़ा सा समझिएगा। आपको हदीस मुतवातिर भी मिलेगी, आप चाहें तो नेट पे सर्च करिएगा, कभी हमें मौका मिला तो हम भी डिस्कस करेंगे। हदीस मुतवातिर होती है, हदीस मुतवातिर का मतलब वो हदीस कि जिन पर हर जमाने में अमल किया गया हो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, ठीक है ना, और आगे पहुंचाया हो। तो इसी तरीके से कुरान में की डेफिनेशन नंबर 1, नंबर 2 तजवीद की डेफिनेशन पूरी पक्की याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दो किस्म की जो मिस्टेक्स हैं, लहने जली और लहने खफी, इन दोनों को याद कर लीजिएगा और इनका हुक्म याद करिएगा। लहने जली हराम है और लहने खफी मकरूह तहरीमी है। ठीक है, सिर्फ इतना कर लें आज इंशाल्लाह, कल हम कंटिन्यू करेंगे और हम कल सीखेंगे अरबिक अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन भी और अरबिक वॉवल्स भी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। और उसके अलावा हमें लहने खफी को भी हम देखेंगे कि व्हाट इज लहने खफी और ये किस किस फॉर्म में कुरान मजीद में आती है। ठीक है, तो हमारा टाइम क्योंकि खत्म हो गया है इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत सारी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, जी प्लीज। अहमद हैं, अस्मा हैं, उस्मान हैं और मंजर भाई, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह वो मैं आप ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आप उसको जरूर सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है, बहुत और शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप पर, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाक वैयाकुम अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे। ठीक है, इसका कोई सवाल तो नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, अगर किसी का कोई भी सवाल हो, यू आर फ्री टू आस्क।
انشاءاللہ. جزاکاللہ خیر. ویاکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ہم کل سیم ٹائم پہ ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.